عزیز طلبہ، میرا آج کا یہ لیکچر ظفر اقبال کی غزل پر مبنی ہے، غزل ہے، اور یہ جو سر پہ سب کے چمکتا ہے آسماں۔ ہم غزل کے فنی محاسن کا بھی جائزہ لیں گے اور اس کی تشریحات بھی دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ظفر اقبال کے مختصر حالات زندگی اور ان کی ادبی حیثیت پر بات کریں گے۔ تو اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ظفر اقبال کے مختصر حالات زندگی۔ ظفر اقبال 27 ستمبر 1933 کو بہاول نگر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک زمیندار گھرانے سے تھے۔ انہوں نے وکالت کی اور اوکاڑا میں پریکٹس کا آغاز کیا۔ اوکاڑا بار ایسوسی ایشن اور پریس کلب اوکاڑا کے صدر بھی منتخب ہوئے۔ قومی سیاست میں بھی بھرپور طریقے سے حصہ لیا۔ شاعری کا آغاز انہوں نے پرائمری جماعت میں ہی شروع کر دیا تھا، اور انہیں جو یاد کیا جاتا ہے کہ غزل کے لیے انہوں نے کیا خدمت انجام دی۔ انہوں نے فنی اور موضوعاتی سطح پر روایت شکنی سے آغاز کیا، اپنی ایک الگ اور بھرپور پہچان بنائی۔ ان کا جو پہلا شعری مجموعہ تھا آب رواں، وہ عوام اور خواص دونوں حلقوں میں بہت زیادہ اسے پذیرائی ملی۔ انہوں نے شعری تجربات کا سلسلہ نہ صرف جاری رکھا بلکہ اسے بام عروج تک پہنچایا۔ اس کے علاوہ وہ کالم نویس بھی تھے۔ مختلف اخبارات میں دال دلیا کے نام سے شائع ہونے والے ان کے کالم بھی اپنے قارئین میں بہت مقبولیت حاصل کر چکے ہیں۔ اب ان کی ادبی حیثیت پر بات کریں گے۔ ظفر اقبال دور موجود کے ایک ایسے شاعر ہیں جنہیں نقادوں نے میر اور غالب کا ہم پلہ قرار دیا ہے۔ غزل کے میدان میں اپنے منفرد طرز شاعری کی بنا پر انہیں عصر حاضر کا ترجمان شاعر کہا جا سکتا ہے۔ غزل کی ایک نئی سمت متعین کرنے پر ادبی حلقوں میں انہیں خاصی پذیرائی ملی۔ حکومت پاکستان کی طرف سے ان کی ادبی خدمات کے صلے میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ اب ان کے طرز کلام کی خصوصیات، جس میں سب سے پہلے اسلوب بیان۔ ظفر اقبال نے غزل کے فرسودہ روایتی مضامین سے ہٹ کر ایک الگ راہ اختیار کی اور غزل کو نئے اسلوب بیان کی چاشنی عنایت کی۔ غزل کے قدیم شعراء کے برعکس ظفر کی شاعری میں محبت کو سائنسی اور روحانی درجہ حاصل ہے۔ حنیف رامے نے انہیں لب و لہجے کی انفرادیت کا شاعر قرار دیا ہے۔ زبان و ادب میں نئے تجربات اور اظہار بیان کی جدت انہیں دیگر شعراء سے منفرد کرتی ہے۔ ادب کے لسانی سانچے سے بغاوت کرتے ہوئے انہوں نے غنائیت سے بھرپور اشعار کہے، جو کہ ان کی انفرادیت کا مظہر ہے۔ دور حاضر سے مطابقت رکھتے ہوئے تشبیہ اور استعارے کی انفرادیت اور بے معنی الفاظ کو معنی و مفاہیم کا پیراہن عطا کرنا ان کی نمایاں خوبی ہے۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیری نے انہیں 20ویں صدی کے ادب کا مجتہد قرار دیا ہے۔ اب ان کی غزل کا پہلا شعر: اور یہ جو سر پہ سب کے چمکتا ہے آسماں، شیشے کی طرح ٹوٹ بھی سکتا ہے آسماں۔ دیکھا جائے تو یہ غزل کا مطلع ہے، کیونکہ دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف موجود ہیں۔ یہاں کہا گیا ہے کہ انسان کے سر پر جو ایک چھت کی طرح سے آسمان تنا ہوا ہے، تو گویا آسمان کو انسان کے سر پر تنی چھت سے تشبیہ دی گئی ہے، استعارے کے معنوں میں لیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر مشبہ کا لفظ موجود نہیں ہے، یعنی چھت موجود نہیں ہے، تو ہم اسے استعارہ قرار دیں گے۔ اور جہاں تک بات ہے آسمان ٹوٹنا، تو یہ محاورہ ہے جس کے معنی ہیں قیامت آنا، تو گویا یہاں تلمیح بھی موجود ہے، اور آسمان بظاہر ٹوٹتا نہیں ہے، جبکہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ گویا ٹوٹ گیا ہوگا، تو حسن تعلیل بھی اس شعر میں نمایاں ہے۔ تو شاعر یہاں کہتے ہیں کہ انسان جو ایک خوشیوں بھرا پر مسرت دور گزارتا ہے، جو انسان کے سر پر خوشیاں مسلط ہوتی ہیں، موجود ہوتی ہیں، چھت کی طرح سے اس پر تنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ دور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دور اس سے چھن جائے۔ وقت کبھی یکساں نہیں رہتا، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، کوئی وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ انسان پر جو خوشیوں بھری چھت، ایک تنی ہوئی چادر ہے، خوشیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں، اس کی جگہ غم آ جائیں، تو گویا اچانک اگر غموں کی موجودگی اسے آ گھیرے
तो हमें यूं महसूस होता है गोया हमारा साहिबान हमसे छिन गया हो, हमारे सर पर तनी चादर हमसे छिन गई हो। तो इसी पैराए में शायर ने इस शेर को इस्तेमाल किया है। और देखा जाए दौरे हासिल के तनाजुर में तो पाकिस्तान में आने वाले सैलाब भी इसकी मिसाल हो सकते हैं। हम अगर इसके शेर के हवाले से कोई मिसाल देना चाहें, पाकिस्तान में आने वाला सैलाब हो या पड़ोसी ममालिक जैसे तुर्की में आने वाला जलजला भी इसकी मिसाल हो सकता है। 2005 में जो जलजला पाकिस्तान में आया था वो भी इसकी मिसाल के तौर पर हो सकता है कि इंसान जो खुशियों भरी जिंदगी गुजार रहे थे, किस तरह लम्हे भर में उनकी जिंदगी बदल गई और किस तरह उन पर उन्हें मुश्किलात और मसाइब ने आ घेरा। गोया एक मुश्किलात का सिलसिला शुरू हो गया, आसमान उन पर टूट पड़ा। गजल का अगला शेर, जूं ही हम आने लगते हैं उसकी पनाह में, एक और ही तरफ को सरकता है आसमां। यहाँ आसमान के सरकने से मुश्किलात के नए सिलसिले का आगाज होना मुराद लिया गया है। तो गोया हुस्ने तालील मौजूद है और आसमान के मसाइब मुरादें, तो ये आसमान को मुश्किलात के लिए इस्तिआरे के हवाले से इस्तेमाल किया गया, बतौर इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया है। और इसका बुनियादी नुक्ता हमें जो दिखाई देता है कि इंसान की आजमाइशें ख़त्म नहीं होती हैं, इंसान को मुस्तकिल परेशानियों का, मुस्तकिल ऐसे मसाइब का, मुश्किलात का सामना करते रहना पड़ता है। और ऐसे में इंसान तमाम मुश्किलात से नबर्द आज़मा होने के लिए वो अल्लाह के हुजूर दरख्वास्त करता है, अल्लाह की पनाह में आने लगता है। एक मुसीबत के लिए अल्लाह के हुजूर दस्ते सवाल दराज करता है तो गोया नई आजमाइश उसके मुंतज़िर होती है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हिम्मत और हौसले से उन आजमाइशों का सामना किया जाए, अल्लाह ताला पर तवक्कल रखा जाए, सब्र और बर्दाश्त से काम लिया जाए, तभी हम आजमाइशों के पे दर पे आने वाली आजमाइशों के उस सिलसिले को शिकस्त दे सकते हैं। वो जो कहा जाता है हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करने से ही हमें वो आसानी नसीब हो सकती है। गजल का तीसरा शेर, होने को आई हिजरते आदम को एक उम्र, चश्मे ज़मीं में अब भी खटकता है आसमां। हिजरते आदम के अल्फाज सनते तलमी के तर्जुमान हैं। ज़मीन और आसमान के अल्फाज सनते तजाद के मज़हर हैं और चश्मे ज़मीन में आसमान का खटकना हम इसे मुबालगा करार दे सकते हैं कि ज़मीन की आंखें नहीं होती, उसमें आसमान नहीं खटकता। और गोया यूँ लगता है कि मुबालगा आ रही है, लेकिन दोनों में ज़मीन और आसमान से मुराद इंसान ही से ली गई है कि इंसान एक दूसरे पर एतबार नहीं करते। इंसान की फितरत है कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। गोया इंसान फसाद बर्पा करने वाले हैं, इंसान को फसादी करार दिया गया है। और बताया गया है कि एक अरसा हो चुका कि जब जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा गया था, उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि इंसान अपने मकसद तख्लीक में अपनी उम्र को सर्व करता, अपना एक मकसद जो मुतय्यन किया गया था कायनात को तस्खीर करने का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए अपने आप को वक्फ कर देने का, उसकी बजाय इंसान आपस में बाहिमी रंजिशों का शिकार होकर अपने असल मकसद को फरामोश कर बैठा और एक दूसरे का दुश्मन हो गया, यानी इंसान ही इंसान को अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। गजल का अगला शेर, फिर खाम करने लगती है उसको हवाए शाम, जब दोपहर की धूप में पकता है आसमान। सनते तजाद के अल्फाज खाम और पकना इसमें मौजूद हैं और आसमान कह के इंसान को मुराद लिया गया, यानी इंसान के लिए आसमान का लफ्ज बतौर इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया है। और हवाए शाम से मुराद ज़माने की मुश्किलात से है, ज़माना जो मुश्किलात का इंसान को शिकार कर देता है। और देखा जाए तो आसमान नहीं पकता, ना दोपहर की धूप में आसमान के पकने का ऐसा कोई सिलसिला है, लेकिन हमें यूँ महसूस होता है कि शायद ऐसा मुमकिन हो, तो हम इसे हुस्ने तालील भी करार दे सकते हैं। यहाँ बात हो रही है इंसान की जहद मुसलसल की, कि इंसान जब से दुनिया में आता है मुसलसल जद्दोजहद का उसका सिलसिला शुरू हो जाता है। उसकी ज़िंदगी मुश्किलात और मसाइब से इबारत है। इंसान का आराम और सुकून निदारद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और ऐसे में होता यह है कि इंसान एक तरफ तो मसाइब और मुश्किलात का सामना कर रहा होता है और दूसरी तरफ ज़माना उसको मुसलसल कमज़ोर करने पर तुला होता है। अभी इंसान पर मुनहसिर है कि वो अपनी तरफ फेंके जाने वाले पत्थरों को इकट्ठा करके अपने लिए
आगे एक बुनियाद बनाता चला जाए कि वो उस पर चढ़कर ऊपर जा पहुंचे, तो ये इंसान पर फर्द पर मुनहसर है कि वो उन ज़माने की तरफ से की जाने वाली कोशिशों को, मनफी कोशिशों को अपने हक में मस्बत तौर पर इस्तेमाल करे। तो जब इंसान तमाम उम्र मुशक्क़त का सामना करता है, ऐसे में भी अगर उसे तान व तशनी का सामना करना पड़े तो इंसान को यूँ महसूस होता है कि गोया उसकी तमाम मेहनत अकारत गई। लेकिन इंसान को ऐसे में हौसले और सब्र से काम लेना चाहिए। गज़ल का अगला शेर, किसकी हविस में रात लबालब था इस तरह, जैसे कि कोई दम में छलकता है आसमां। यहाँ आसमान बदनसीबी के मायनों में लिया गया है और कहा गया है कि गोया बदनसीबी किसी के तलाश में थी कि जैसे अभी उस पर छलक पड़ेगी। किसी को उसने अपना एक निशाना बनाया हुआ था कि वो उस रास्ते पर सफर का आगाज करे और बदनसीबी उसे आ दबोचे। तो यहाँ रात कहकर जुल्म की स्याह तारीख रात मुराद ली गई है, जिसमें लोगों को मजालिम का सामना करना पड़ता है, लोगों को निशाना बनाया जाता है, उनको मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है, गोया उन पर पे दर पे मसाइब के पहाड़ टूट पड़ते हैं। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि ये एक अलामती पैराए का शेर है, जिसमें इंसान के बुनियादी हुकूक की भी बात की गई है कि इंसान किस तरह से मुश्किलात का सामना कर रहा होता है और एक के बाद एक मुश्किलात उसे आ घेरती हैं। यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि ताकतवर इक़्तिदार पर में मौजूद लोग भी बसा औकात किसी को अपना निशाना बनाने के लिए उसको मुश्किलात से दो चार कर देते हैं, उस पर एक के बाद एक मुश्किलात मसाइब उस पर अरसा हयात तंग करने लगते हैं। तो यहाँ उसको भी मुराद लिया जा सकता है। अगला शेर, छाया हुआ मेरे ही दिलेजार पर नहीं, इस चश्मे नाज में भी छलकता है आसमां। उस चश्मे नाज से मुराद महबूब से है, यानी महबूब मजाजी, और आसमान कह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को मुराद लिया गया है। तो गोया इस्तिआरा हमें यहाँ नजर आता है और कहा गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत मेरी रगो पे में समाई हुई है। तो गोया इश्क मजाजी के साथ साथ इश्क हकीकी भी इस शेर में मौजूद नजर आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत सिर्फ मुझ में ही मौजूद नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से लगाओ सिर्फ मेरी ही ज़ात का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो मेरा महबूब, वो मेरा मजाजी महबूब जो इस दुनिया में मेरा हमसफ़र है, वो भी अल्लाह ताला की मोहब्बत में मेरे ही जैसे जज्बात रखता है। जैसा कि मैं अल्लाह की मोहब्बत से सरशार हूँ, मेरा हमसफ़र भी उसी तरह अल्लाह की मोहब्बत का जज्बा अपने दिल में रवां रखता है। गजल का अगला शेर, इस खाक के खुमार में जब डूबता है दिल, मेरी तरफ कुछ और हुमकता है आसमां। खाक का खुमार, खाक मट्टी, इंसान खाक का पुतला, लेकिन यहाँ खाक से मुराद इंसान को यहाँ पर ली गई है हुब्बुल वतनी के पैराए में। और जब हुब्बुल वतनी हमारी रगों पे में अपनी जगह बना लेती है, हम अपनी वतन से मोहब्बत के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, तो नसीब हमारे साथ होते हैं। हुमकना, आसमान का हुमकना मुबालगा है। यहाँ बताया गया है कि नसीब मेरे साथ होते हैं, और जो हुमकने का लफ्ज़ है वो बच्चे के लिए होता है कि जिस तरह बच्चा किसी की तरफ मोहब्बत से लपकता है उसे हुमकना कहा जाता है, जबकि आसमान ऐसे नहीं हुमकता, लेकिन नसीब हमारे साथ हो जाते हैं जब हम एक मस्बत पैराए में अपने वतन से मोहब्बत के लिए हम कुछ अच्छे काम का आगाज़ करते हैं। तो ऐसे में दुनिया की तमाम कुव्वतें हमारे साथ हो जाती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद शामिल हाल हो जाती है, गोया नसीब हमारे हमराही बन जाते हैं और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। जब हम अपनी वतन से मोहब्बत के लिए अपने आप को कुर्बान करने, अपनी जान तक निछावर करने के लिए तैयार होते हैं, हमारा दिल वतन की मोहब्बत से सरशार होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हमारे लिए आसानी फरमा देता है, मामलात आसान कर देता है। और वो वक्त आता है कि जब हम अपने हम वतनों के लिए कुछ ऐसा काम कर जाएं कि वो जो उनके लिए खुशहाली का बायस हो। गजल का अगला शेर,
बादे खिजा में उलझा हुआ ख्वाब ख्वाब चांद, एक फूल है कि जिससे महकता है आसमान। इस शेर में भी अलामती अंदाज इस्तेमाल किया गया है। चांद मंजिल के लिए इस्तेआरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और यहाँ कुछ यूं बताया गया है कि मंजिल के हुसूल के लिए हालात बज़ाहिर साजगार नजर नहीं आते कि खिज़ां के मौसम में जो मेरी मंजिल है वो मुझे चांद की तरह से ख्वाब की तरह नजर आती है। जिस तरह अंधेरी रात में चांद नजर नहीं आता, उसी तरह से मुझे कामयाबी के इम्कानात कम नजर आते हैं, लेकिन दिल के गुलशन में उम्मीद का एक फूल खिल उठा है जिससे मुझे रोशनी की एक किरण फूटती, उम्मीद की एक किरण फूटती दिखाई देती है और यूं महसूस होता है कि अगर जद्दोजहद की तो जरूर वो असर लाएगी, मेरी जद्दोजहद बार बार साबित होगी। और यहाँ मुझे ये भी एहसास होता है कि दिल के नाले असर रखते हैं, दिल के आहें असर रखती हैं। एक तरफ अगर मैं हिम्मत और मेहनत से काम लूं तो दूसरी तरफ अल्लाह ताला की मोहब्बत शामिल हाल होगी और मुझे अपनी मंजिल से हमकिनार करेगी। गजल का आखिरी शेर। तारे से दिल में टूटते रहते हैं ए जफर, और सारी सारी रात धड़कता है आसमां। यहां देखा जाए तो यह गजल का आखिरी शेर यानी मक्ता है और इसमें सनते मुबालगा नजर आती है क्योंकि दिल में तारे नहीं टूटते और आसमान नहीं धड़कता। तो और दूसरी तरफ देखा जाए तो लफ़ो नशर भी, सनत लफ़ो नशर भी नजर आती है कि दिल की धड़कन और आसमान पर तारे का रब्त हमें नजर आता है। लेकिन चूंकि वो AKUEB के SLOs का हिस्सा नहीं है तो हम लफ़ो नशर को नहीं देखेंगे, हम यहाँ सिर्फ सनत मुबालगा को बयान करेंगे। और यहाँ बात की जा रही है तारे से उम्मीद मुराद ली गई है, तो इस्तिआरा तारे कहकर इस्तिआरा उम्मीद के लिए है और ये उम्मीद का जो दिया है वो जलता बुझता रहता है। कभी मुझे यूं महसूस होता है कि मेरी मेहनत रंग लाएगी, कभी मुझे यूं लगता है जिस तरह तारे टूट जाते हैं उस तरह से मुझे वो एक नाकामी की निशानी नजर आते हैं। और आसमान का धड़कना यहाँ उम्मीद और आस के मायनों में इस्तेमाल किया गया है कि मुझे लगता है कि गोया मेरी मेहनत शायद बार बार साबित हो, मेरी मेहनत का फल जरूर मुझे मिलेगा और इसी की बदौलत में मुश्किलात का, परेशानियों का सामना करता नजर आता हूँ, मुस्तकिल मुश्किलात को सहता चला जाता हूँ कि जिस तरह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी फरमा दिया हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो अल्लाह का ये फरमान मेरे पेशे नज़र रहता है और उसकी बदौलत मैं मुश्किलात का सामना करता चला जाता हूँ। हाँ, कहीं उम्मीद का दिया बुझता ज़रूर है, जलता है फिर बुझता है, लेकिन मैं उससे बेनियाज होकर अपनी मेहनत को बुनियाद बनाकर आगे बढ़ता चला जाता हूँ। अजीज तलबा, इसके साथ ये लेक्चर यहीं तमाम हुआ। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।